Philippians chapter 2 verse 2 and 3. फिलिपियंस अध्याय 2 Philippians chapter 2 3 और 4। verse 3 and 4. फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 उसका 3 और 4। Philippians chapter 2 verse 3 and 4. विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे से अपने से अच्छा समझो, और हर एक अपनी हित की नहीं परंतु दूसरे हित की चिंता करो। Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mindset let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. We'll pray. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ, वचन की सेवा को आपके हाथों में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए आप सहायता करना। वचन का ताबा आपके हाथों में दिया है, हम पर दया करना मेरे राजा यीशु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, आप अनुग्रह करना यीशु के नाम से, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. फिलिपियों की पुस्तक पौलुस ने लिखी है। The book of Philippians was written by Apostle Paul. और वो उस समय लिखी गई। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 उसका 3 और 4। We'll open the book of Philippians chapter 2 verse 3 and 4. ये पुस्तक पौलुस ने लिखी और जब लिखी तब वो जेल में था। The book of Philippians was written by Apostle Paul when he was in the prison. और वो जेल कोई पाप करने के कारण या गलत काम करने के कारण नहीं गया था। And he was not into the prison that he sinned or he did anything और wrong. पतरस भी यही कहता है। And Peter was also saying the same कोई thing. गलत काम के कारण तुम जेल में मत जाना। Due to any wrong or due to any sin, you should not be going to the prison लेकिन or अगर jail. तुम्हें यीशु के कारण जेल में जाना पड़ा तो जाना। But if you are going in the jail because of Christ, then you should go. तुमने दारू पिया है बोल के जेल गए, बलात्कार किए बोलकर जेल गए, मर्डर किया इसलिए जेल गए, बाजू वाले के साथ झगड़ा किया इसलिए जेल गए, उसके लिए मत जाना। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम यीशु पर विश्वास करते हो और इसीलिए तुम यीशु का प्रचार करते हो, इसलिए तुम जेल गए, तो कोई बात नहीं। You killed someone, you murdered someone, or you raped someone. That's what. Because of that, if you are going into the jail, then it's a shameful thing. But you did nothing. You just believing on Christ. You are preaching the gospel, and just because of that, if people are putting you into the prison or jail, then you should go because it's for the glory of God. हमारा यीशु मसीह भी जेल में रखा गया। Our Jesus was also into the prison. जब उसे पकड़ा गया था, When the soldiers captured him into the prison, तो उस समय उसे जेल में रखा था। so they kept him into the prison भोर होने तक, till the early morning. है ना? तो जब उसे मारा, कैफा के सामने मारा, उसके बाद रात भर उसे जेल में रखा। They beat him in front of the Caiaphas and they kept him into the jail. यीशु ने कहा, हरे भरे झाड़ के साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ, तो मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ, तो यीशु के साथ हुआ है, हमारे साथ क्यों होगा? So what Jesus said, if the people done such things with the green tree, so we are like the dry tree, so the people will do the more thing against us. तो इसलिए बुरा नहीं मानने का अगर हमें यीशु के लिए जेल में जाना पड़ा तो। So don't feel bad just because of Christ. You are believing on Christ. You are preaching the gospel, and people putting you in a jail. भी बहुत सारे लोग जो जेल में हैं, वो वहाँ जाकर प्रचार कर रहे हैं। And now also, the people who are into the jail, they are prison. They are also preaching the gospel there. तो पौलुस भी यही कर रहा है, जेल में रहकर प्रचार कर रहा है। And Paul was also doing the same thing. He was into the prison, but he was preaching the gospel. अब जेल में जाकर भी वो कहता है सदा आनंदित रहो। And he was into the jail. He was into the tribulation, but still he's saying that always do rejoice in the Lord. तो हमारे दुख में भी हम आनंद करें। What he's saying, in our sadness, in our tribulations, in our problems also, we should rejoice in the Lord. तो हमेशा हम आनंदित रहे। So always we should be happy. मसीह लोग हमेशा हंसते रहे। Always we should be keep smiling. हमारे मुंह पे बारह नहीं बजने। We should not be sad, नहीं तो or we should not be in sorrow. ऐसे ना हो। We should not be like this. हाँ, बस हमारा यीशु आनंद का सोता है। Our Jesus is the source of happiness. तो हमारे चेहरे पे आनंद दिखना है। So we should always see like happy इवन हमारे दुख में भी। in our troubles also. यही तो बात है जो संसार नहीं कर सकता। This is the thing the world never do, क्योंकि संसार के लोग रोते हैं। because they are always crying. वो जब दुख करते हैं तो रोते हैं। When they are into the sorrow, when they are into the sadness, they are crying. लेकिन हम हमारे दुखों में भी हम आनंदित रहकर प्रभु को बोलते
But whenever we are into the troubles, whenever we are into the sorrow, we are always smiling and we are always saying thank you Jesus. है ना? तो इसलिए वो कहता है मैं इन जंजीरों से शर्माता नहीं हूँ, मैं अगर जेल में गया हूँ तो भी मैं शर्माता नहीं हूँ। And what Paul was saying, he was into the jail, he was into the prison, but again he was saying, I'm not shy, I'm happy. तो इसीलिए प्रियो ये जो पत्री लिखी उसने जेल में रहते हुए लिखी है। So the book of Philippians, Paul wrote when he was into the jail. अब वो 3 और 4 वचन के द्वारा हमें सिखाता है हमें स्वार्थी नहीं होना है। And now Paul was motivating us by the word 3rd and 4th that we should not be selfish. वो हमें बताता है स्वार्थी यानी सेल्फिश हमें नहीं होना है। We should not be selfish. यानी स्वार्थी लोग क्या करते हैं, अभी जैसे हमने 3 और 4 ये वचन का जो सारांश यानी क्या सिखाना चाहते हैं, जैसे लिखा है विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। So vain glory and strife, you should not do the things for vain glory and strife. विरोध कब आता है? When the opposition comes, अगर सोचो मैं विरोध कर रही हूँ इसका, suppose I am opposing him. क्यों? Why? क्योंकि मैं अपना देख रही हूँ। Because I am selfish. I am looking at my place only. तब मैं इसका विरोध करूँ। Then only I will oppose him. जब मुझे यीशु का विरोध करना है तो इसका Whenever- मतलब मैं सेल्फिश हूँ, मुझे अपना, मैं जब अपने बारे में जब सोचती हूँ तब मुझे क्या आता है, जिसने मुझे सामने कुछ कहा है उसका मैं विरोध करूँगी। Whenever we are thinking about ourselves only, at the same time we are opposing someone else who is talking against us. तो इसलिए प्रभु यहाँ आज 3 और 4 वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है, अपने हित की नहीं दूसरे की हित की चिंता करो। मतलब जो सेल्फिश होता है वो अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। The conclusion of word 3 and 4 is that never you should think about yourself only, but think about others people also. प्रभु ने अपने बारे में नहीं सोचा, God never thinks, or Jesus never think about himself. उसने ऐसा नहीं सोचा मैं क्यों मरूं, He never thought like, why should I die? मैं स्वर्ग का राजा हूँ, I'm the king of heaven. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, I'm the son of the मैं Godfather. देहधारी बनूं, Why should I took birth into the मैं flesh? क्यों पृथ्वी पर आऊं, Why should I come on this earth? है ना? उसने ऐसा नहीं अपने बारे में नहीं सोचा, He never think about himself. है ना? उसने हमारी चिंता, He always thinks about us. उसने अपने से भी ज्यादा हमें अच्छा समझा। And he always treated us better and more precious than himself. बराबर है? Correct? इसलिए उसने अपने आप को दिया, That's why he gave his own life for us. अपने आप से भी ज्यादा अच्छा समझा। And he treated us very more precious than his own life. इसलिए वो क्या हुआ, हमारे लिए मरा। That's why he could die for us. So God always think about us. हमारे हित की चिंता की, He always thinks about for our हमारे better, भले की चिंता की, for our better life. है ना? तो वो स्वार्थी नहीं था। He was never selfish. अगर वो स्वार्थी होता If he is selfish, तो वो हमारे लिए नीचे नहीं आया, so he could never die for us. हमारे लिए नहीं जान देता, He could never die for us. हमारे लिए अधोलोक नहीं जाता। He could never die, go to the hell. अधोलोक के लोग भी बचाना चाहता था, उसकी इच्छा थी कि अधोलोक के लोग भी बचाए जाए। He also want to save the souls which are into the hell. बराबर है? Correct? तो यीशु स्वार्थी नहीं है, तो वैसे ही हम भी स्वार्थी नहीं हो, ये प्रभु की इच्छा है। इसलिए पौलुस के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है हमें सेल्फिश नहीं होना। As Jesus was never selfish, and God also wanted God's people should also never be selfish. That's why the word of God teaches us from the word 3 and 4 that we should never be selfish. तो स्वार्थी मतलब क्या? सिर्फ अपनी खुद के लिए, खुद की बातों के लिए, खुद को समर्पित, अपनी खुद की ख्याल करना, अपने खुद की परवाह, अपने खुद के बारे में ज्यादा क्या अच्छा है, क्या फायदा है, मुझे क्या अच्छा मिलेगा, उसके बारे में हमेशा संघर्ष करना, वो व्यक्ति स्वार्थी है। So what the selfish person does, he always thinks about himself, he always want to care himself, and he always give priority to himself. तो यीशु ने कहा कि अगर तुम्हें मेरा शिष्य होना है तो खुद का त्याग करना पड़ेगा, खुद को इनकार करना पड़ेगा, यानी सेल्फिशनेस तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। And what Jesus told to his disciples that if you want to be my disciple, then you have to sacrifice yourself and you have to follow me. तो स्वार्थी
ये पाप है, गंभीर पाप है। And being the selfish is a sin. इसलिए परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी, So that way when the God gives 10 commandments, उसमें के जो 4 तो परमेश्वर के लिए थी। the first 4 commandments are related to the God. हाँ, तो जो हमारे जीवन में पहला स्थान कौन होना चाहिए? परमेश्वर। So God should be always on first priority in our life. हाँ, लेकिन बाकी की जो 6 आज्ञाओं को अगर हम देखेंगे, So rest of the 6 commandments are there, ये सारी आज्ञाएं किसके विषय पर बता रही है? दूसरों के विषय पर। and all the rest 6 commandments are telling us about each other. हाँ, मतलब हमारे खुद के स्वार्थ को छोड़ने के विषय पर बताती है। What that 6 commandment teaches us that we should not be selfish and we should care for others. ठीक है, तो चौथी 4 आज्ञाएं तो मालूम ही है। You all know the first 4 commandments. तो प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य देवता को न मानना, You should not serve other gods than me. मूर्ति पूजा, Don't do idol worshipping. तीसरा, Third, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, don't take God's name in a vain. और चौथा, And fourth, तो शपथ दिन। you तो अभी always बाकी की follow 6 Shabbat. आज्ञाएं कौन सी? तो पहली जो आज्ञा दी गई, मतलब 4 आज्ञा के बाद जो पहली शुरुआत हुई एक दूसरे के प्रति, यानी हमारा एक इंसान होने के नाते जो दूसरों के प्रति हम सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमारा कार्य होना चाहिए, उनके प्रति काम होना चाहिए, अपने विषय पर सोचना नहीं चाहिए। इसलिए जो 5वीं यानी पहली तो कौन सी है? तो अपने पिता और माता का ऑर्डर करना, यानी हर इंसान के लाइफ में सबसे पहला हर एक बच्चा स्वार्थी नहीं होना चाहिए अपने माँ बाप के विषय पर। And the 5th commandment, God told us that we should we should give respect to our parents. It means that we should never think about ourselves, but the parent should be at first place in our life. है ना? बहुत बार हमें माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, Sometimes we don't like whatever our parents are telling to us. जबकि बाइबल क्या कहता है? उन्हें आदर करना, But what Bible says, we have to honor our parents. लेकिन हम उनका नहीं सुनते। But we never listens to our parents. जब हम माँ बाप का नहीं सुनते तब हम स्वार्थी होते हैं। And whenever we are not following the instructions or the thoughts of our parents, we are disobeying them and we become selfish. हम स्वार्थी हैं। We become selfish at that point. ये बाइबल हमें बताता है। This is the Bible teaches us. सही। Correct? जब हमारे माँ बाप हमें कुछ सोच निर्णय लेने के लिए हमारे कुछ ज़्यादा बातों के विषय पर हमें समझाते हैं, कुछ निर्णय के बारे में, तो हम ज़्यादा बोले नहीं, हम हमारा निर्णय हम बोल देंगे, हमें नहीं बताना। जब तक आपके माँ बाप जिंदा है, जब तक आपकी शादी भी हुई हो, जब तक आपके माँ बाप जिंदा है, आप तब तक उनके अधीन रहना है, उनका भला चिंतना है, वो जो क्या कहते हैं वो सुनना है, करना है। आप नहीं बोल सकते आई एम मैरिड, डोंट टेल मी नाउ, ऐसा नहीं बोल सकते। Though you are young, though you are educated, though you are more powerful, now you are earning something, now you married, now you are also become a parent, but still you can't refuse, you can't deny your parents. Whatever they are saying, you have to obey them till their last breath. Whenever they are alive, till that point you have to obey to your parents. तो जो बहुत बार हम सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं और अपने माँ बाप को हम छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़कर अलग रहने लगते हैं, माँ बाप को जो देना चाहिए वो नहीं देते। बहुत बार हम माँ बाप की जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं करते। बहुत बार हम माँ बाप को खर्चा करते समय भी सोचते एवढे पैसे खर्च करायचे, बापरे किती बिल येतोय, हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करायचं का आई बाबाला, आता काय म्हातारे झाले, आता काय त्यांना जगायचे का, आता काय त्यांना खर्च करायचा आहे, आता काय त्यांना हे बघायचं आहे। And most of the times what people does, like when they are growing, when they are well educated, when they get well settled, at that time they are leaving their parents and they start living alone, and they are not caring their parents, they are not doing some expenses or they are not providing their needs. So this is not the correct thing. So we have to fulfill all the needs of our parents. तो ये इनके अपन बरेच वेळेला बहुत बार हम स्वार्थी हो जाते हैं। So most of the times we become selfish at these places. बहुत बार। Most of the times. कभी लड़के के लिए, कभी लड़की के लिए। To marry someone, for a boy, for a girl, we are leaving our parents for money. बहुत सारी बातों। Most of the things. तो
पहला पॉइंट परमेश्वर आपको कहता है अपने माँ बाप के साथ स्वार्थी नहीं बनना। So- वो एक श्रेष्ठ है, अपने से अच्छे हैं, उनके कारण मैं आज हूँ। ये बातें आपको याद रखना चाहिए। इसलिए उनके विरोध में वो यही पढ़ा ना, तीसरा वचन 2 का तीसरे में, विरोध में और कुछ लोगों को दिखाने के लिए, मम्मी पापा हाँ जी अभी करता हूँ, हाँ जी जाना है, कोई नहीं तो बोलने का, ये गलत। So the first point, God want to teach us that we should respect to our parents, we should obey them, we should never devaluate them, we should not disrespect them. And another thing that God want to teach us is that wherever they are alive, till the point we have to obey them, we have to honor them. फिर माँ बाप के बाद दूसरे कौन आता है आगे में? Then second place, तू बोलना करना। then you should not be kill someone, you should not do any murder. हम स्वार्थी हो जाते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, किसी और के अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं, जबरदस्ती करते हैं, कभी कभी उनके लाइफ में इतना इंटरफेरेंस करते हैं, इतना दखलंदाजी करते हैं कि वो जीने की आशा छोड़ देते हैं। And sometimes we becomes more selfish, and what we were doing that we are taking someone else's right, we are trying to gain it, and we are trying to capture his life, and this is also sin. और हम क्या करते हैं, हम ऐसा तो मर्डर नहीं करते, लेकिन हम अपने होठों से दूसरों के बारे में बोल कर, उनके बारे में गलत बोल कर, उनका भूतकाल निकाल कर, उनके बारे में चर्चा कर हम उनका मर्डर बार करते हैं, बार। हम सेल्फिश है, हम अपने बारे में नहीं बताते, हम अपने बारे में बता देंगे दूसरों को, मैं ऐसी हूँ, हम नहीं बताते, हम सेल्फिश है। हम क्या करते हैं, हम दूसरों से, देखो मैं निवृत्ति से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, निवृत्ति बहुत बुरा है, वो घमंडी है, अहंकारी है, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत नम्र हूँ। मैं जब ऐसा बोलती हूँ इसका मतलब क्या है, वो अहंकारी है, मतलब मैं नम्र हूँ। जब मैं बोलती हूँ वो झगड़ालू है, तो मतलब मैं अच्छी हूँ। मीनिंग समझ में आया आपको? इससे हम क्या करते हैं, हत्या करते हैं। मैं सेल्फिश हूँ, इसीलिए मैं दूसरों की बुराई करती हूँ। So sometimes what we are doing that we becomes more selfish, so we are not giving respect to the other peoples. We are always telling bad things about them. We are always talking about their past, what mistakes they have done. And by physically we are not murder someone. We are not by gun or by knife, by sword. We are not killing someone, but by our words which we are telling against them. By that we are killing them. उसका नेक्स्ट आ गया। Then another commandment. तू व्यभिचार न करना। तो बहुत जो सेल्फिश होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बीवी को, अपने बच्चों का नुकसान करते हैं और अपने शरीर को जो अच्छा लगता है, अपने शरीर को, मेरी इच्छाएं मैं, इसलिए वो क्या करते हैं, पराई स्त्री के पास, पराई पुरुष के पास जाकर वो व्यभिचार करते हैं, अपने शरीर को संतुष्ट करते हैं। And the next commandment is that you should not do any adultery. So whenever there is their own body is not under their control, so what they are doing, they are deceiving their spouses, husband and wives, and they are going to some another people and they are doing adultery with them. हाँ, तो इसे भी सेल्फिश कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना सोचा, अपनी पत्नी का नहीं सोचा, अपने कुटुंब का नहीं सोचा, अपने बच्चों का नहीं सोचा, अपने माँ बाप का एक नाम है, अपने पृथ्वी पर परमेश्वर का एक नाम है, उसका नहीं सोचा, उसे अपना सोचा। नहीं, मेरी मर्जी, मेरा जीवन है, मेरा शरीर, मैं कुछ भी करूँ। And why adultery is a sin? Because why adultery is a selfishness? Why? Because they never think about their own life, about their spouses, about their family, about their image, their reputation, about God. No, they just want to try and they just want to fulfill their own desires. That's why they are doing the adultery. जितने दारू पीते हैं, जितने तंबाकू खाते हैं, जितने बीड़ी पीते हैं, जितने सिगरेट पीते हैं, वो सब सेल्फिश है। And the people who are sitting here, who are doing drinks, who are doing some addictions, so all are selfish people. हाँ, क्यों? आप बोलोगे ऐसे कैसे दीदी बोल सकती है? So you can ask like how you can preach in such a way. सच है ना? क्योंकि आप अपने फैमिली से भी ज्यादा अपनी मन मर्जी करते हो, अपनी सेल्फिश है, आप अपना सोचते हो कि मुझे पीना है, मुझे खाना है, मुझे सिगरेट पीना है, मुझे तंबाकू खाना है। So सेल्फिश हो। आप ये नहीं सोचते कि अरे इसमें मेरे परमेश्वर का नाम खराब होता है, इसमें मेरी बीवी को पसंद नहीं, मेरे बच्चों को पसंद नहीं, जिसके कारण मेरे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ता है? पड़ता है ना? आप जब दारू पीते हो, आपके बच्चों को अच्छा लगता है?
आपके बच्चे कभी, आप अपने बच्चों को पूछो, कभी पूछो कि मैं दारू पिया बेटा तेरे को अच्छा लगा क्या? बेटा बोलेगा आप पापा हम दोनों साथ में बैठ के पिएंगे, चलेगा बाप को? बाप को बोले पापा मैं सिगरेट, बेटा तुझे सिगरेट पे पीता हुआ अच्छा लगता है क्या? तो बेटा बोलेगा मैं तुझे पी के दिखाता हूँ, फिर आपको मालूम पड़ेगा कैसा लगता है। ये सेल्फिश डिजायर्स है। So all these are selfish desires, like we are doing addictions, smoking, drinking, all these are the selfish desires, and our God should not get pleased to it, and our children, our families also not liking it. चर्च नहीं आते हो, You are not attending the church meetings. स्वार्थी इच्छा है, क्योंकि आप क्या करते हो, स्वार्थी आप इच्छा लाते हो कि नहीं आज मुझे चर्च नहीं जाना है, आज मुझे शादी को जाना है, आज मुझे इस फंक्शन में जाना है, आज मुझे इधर जाना है, आज मुझे उधर जाना है। So whenever we are not attending the church meetings, we are doing our daily works, our personal works. It means that we become selfish at that point. है ना? बहुत बार आपको ऐसा, आप जब भी बोलते हो कि मुझे दान दक्षिणा नहीं देना है, When you say that you don't want to give tithes and offerings, है ना, तो उस समय भी ये सेल्फिश डिजायर है, so these are the selfish desires. स्वार्थी इच्छा हो गई, क्योंकि आप प्रभु से भी ज्यादा पैसे को प्यार कर रहे हो। So you are loving the money or finance more than your God. क्योंकि उसके आगे क्या लिखा है? The next word says, आज्ञा तू चोरी न करना। तो जो चोरी करते हैं वो स्वार्थी है। so whenever we are robbing someone, then it's a selfishness. यानी जिसके अंदर स्वार्थी है, अभी जैसे मेरे अंदर मैं दशांश नहीं डालती हूँ, मैं अगर फंड नहीं भरती हूँ, मैं चर्च की जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए अपना हाथ नहीं आगे करती, यानी मैं सेल्फिश हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? इस चर्च से वचन लेती हूँ, प्रभु भोजन लेती हूँ, प्रभु से आशीष लेती हूँ, प्रभु से ब्लेसिंग लेती हूँ, लेकिन प्रभु को देने के लिए स्वार्थी लोग ऐसे ही होते हैं ना, स्वार्थी लोग ऐसे होते हैं ना। स्वार्थी लोग क्या देते? अरे तो कुठे चालला? चर्च स्टेशनला चालला, चल मी पण येते। फिर रिक्शा में बैठ जाते हैं, भाड़ा कौन भरता है? भाड़ा कौन भरता है? इसने भरा, कितना भरा? 60 रुपये भरा, 80 रुपये भरा, आपका अलग अलग आता है ना। तो मैं स्वार्थी हूँ, मैंने मेरा हित चाहा, मैंने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर लोड पड़ रहा है। सही है, करेक्ट है। अगर हम 4-5 जन रिक्शा से आ रहे हैं तो भी हम भरना है ना। तो मैं सेल्फिश हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, इसका साथ पकड़ा। मतलब मैंने चाहा कि इसके पैसे जाते जाने दो, मेरे तो नहीं जा रहे, जाता है इसका डूबता है ना, मेरा तो नहीं जा रहा है, मेरा तो 20 रुपये बच गया, मेरा तो 100 रुपये बच गया। आपको समझ में आ गया? And most of the things what happen in financial things also we are deceiving God. So the next commandment says that you should not do any robbery. So whenever we are not in financial conditions, when we are not faithful with God, like when we are not giving tithes, offerings and our donations towards the church, so it's a selfishness and it's a sin against God. Again, another thing, when we are not fulfilling the needs of our people, the church people, then it's also a selfishness. तो क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी और पर अपना भार डालते हैं, अपना देखते हैं, अपना सोचते हैं, अपनी चिंता करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस चर्च से हम है बिलोंग करते हैं उस चर्च को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उस चर्च को मदद करना चाहिए। आज आप खुद सोचो ना कि आज आपके पास चर्च है इसलिए हम सब बैठते हैं। आज देखो यूपी में देखो उनको कितना भाड़ा भरना पड़ता है। And now most of the people, they don't have their own church. They have rented church 30,000, 50,000 per service. They are paying the rate to the वो भी people. 1 घंटा ही दिया रहता है, And only 1 hour they are praying. कभी-कभी 2 घंटे, Sometimes 2 hours. वो भी 2 घंटे के अंदर सब जाने चाहिए। And within 2 hours you have to empty that hall. You have to evacuate that hall. आप तो 4 बजे तक बैठते हो। Sometimes we are sitting till 4 p.m. in this church. सही है? Correct? तो हम सेल्फिश होते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ जो लिखा है कि अभी चोरी न करना, तो हम कभी कभी बहुत सारी बातों में लोगों का हम चोरी करते हैं, तो हम सेल्फिश। प्रभु का हम भाग चोरी करते हैं, यानी हम सेल्फिश। And sometimes what happen, we are not helping others, we are not giving tithes, we are not giving donations, and we are not giving offerings. So it's a selfishness, and we are doing robbery against God. कभी कभी हम दूसरों की मालमत्ता पर, दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रखते हैं, उनसे खर्चा करवाते हैं, उनसे उनके पैसों पर हम नजर रखते हैं, जो भी चोरी है। And sometimes we are taking, आया
सेल्फिशनेस आया, उसके अंदर स्वार्थी हेतु आया, इसलिए तो उसने दूसरों की जमीन पर, दूसरों के काम के ऊपर, दूसरों के पगार के ऊपर क्या किया, नजर रखा ना। And sometimes we are taking someone else's property, someone else's land, someone else's house. So it's also a selfishness. Means we are not thinking about them, we are thinking about ourselves only. फिर उसकी नेक्स्ट आ गया, The next commandment, तू झूठी गवाही न देना। you should not say wrong or you should not say false against someone. लेकिन हम क्या करते हैं, What we are doing, खुद के हेतु के लिए, खुद का काम साधने के लिए हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं। and for our own benefit, for our own things, what we are doing, we are giving false statements about someone else. कभी कभी देखो बहुएं बड़ी चापकर होती है, Sometimes the sister-in-law, they are very smart. Daughter-in-law, sorry, daughter. बड़ी चापकर होती They are very smart. है। अगर माँ बेटे में झगड़ा लगाने का काम करने का रहेगा ना, If they want to do the argument within mother and son, या फिर बाप बेटे में झगड़ा लगाने का काम करने का रहेगा, or their internal family, if they want to do some arguments, तो अकेले में अपने पति को जाके झूठ झूठ, ओ जी आप इन्होंने ने ऐसा ऐसा किया और ऐसा किया और and then she will go to his husband, then she will go to her husband and she will say very false things about their family. फिर बेडू कैसा फूकता है, मेंढक मेंढक कैसा फूकता है, अच्छा 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 अच्छा, फिर वो पापा आपने ऐसा क्यों किया, मम्मी ऐसा And most of the times, due to false statements, due to false things, arguments happen in our family. अब ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण, This is the smallest example. ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, अपने आप को अपना काम साधने के लिए, अपना काम निकालने के लिए सेल्फिशनेस के कारण लोग क्या करते हैं, दूसरों के बारे में झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं। And what the many people does that for their own benefit, for their own things, what they are doing, giving false statements against someone else. मेरे बारे में भी बहुत से लोग झूठ बोलते हैं। And for myself, means for about pastors also, many people think false things. बहुत से लोग क्या बोलते हैं, मुझे सुनाई आता है मेरे पुढे काम करत, अरे वाह मी तर म्हणजे किती छान माझी पब्लिसिटी झाली बिना पैसे खर्च करता, व्हेरी गुड थँक्यू थँक्यू। Many people are giving false statements. They are saying bad things about myself, pastors and churches. हा तर मी तर खुश होते बघा, कारण आपले न खर्च करता पब्लिसिटी करायला बघा पैसे द्यावे लागतात ना। So I'm not getting sad. I becomes happy at that time because I'm getting publicity. हो दीदी तुमचं, अरे वा छान, किती छान, अजून तुम्ही पण बोला, दुसऱ्यांना जाऊन सांगा। आपली एवढीच पब्लिसिटी होते, त्याच्यात काय आपल्याला बिना खर्च करता नाही। So whenever people are talking behind me, I becomes very happy. हा, कारण का? Why? तर आपली पब्लिसिटी होते। Because I'm getting publicity. I'm getting famous among them. मग त्याने काय होतं, आपण पसरलं जातो। And what happened? That my names get spreading among them. मग त्याच्याने काय होतं, लोक येतात, And then people start coming to church. कारण जिथं असं वापर जास्त पसरवली जाते तिथं जास्त लोक येतात। And whenever there is a false statements about the things, there people are started gathering there. खरंच का ही दीदी अशी करते, And they want to cross verify whether such things happen at that church. चेक करू आपण, We'll check. आणि बघतात अरे नाही असं काहीच नाही। And when they are coming, they are seeing the reality. It's not happened here, and they start following ये Jesus. लक्षात ठेवा। तो इसलिए प्रियो, झूठी गवाही के द्वारा जो लोग झूठ बोलते हैं दूसरों के लिए, अपना हेतु साधने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए जो झूठ बोलते हैं दूसरों के विषय पर, वो स्वार्थी होते हैं। And the people, for their own benefit, when they are started giving false statements against each other, then it's a selfishness. हाँ, सबसे लास्ट, Then last, तू लालच न करना। you should not be. पैसा 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 पैसे के पीछे, है ना। तो जब मनुष्य के अंदर स्वार्थी इच्छा आ जाती है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत बड़ा नाम करना है, मुझे बहुत ये करना है, तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा, प्रभु को भी छोड़ देगा, चर्च आना भी छोड़ देगा, अगर कभी कभी आने का वो भी कर चलेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसके अंदर सेल्फिश इच्छा पूरी करने आई है, उसे वो पूरा करना है। And when the people becomes greedy, when they have lust for something, so they'll not, they'll start refusing Jesus and they'll start follow their own desires like money, work, and whatever their own desires they have, they'll start और following. आपके सामने एक अच्छा उदाहरण है, जवान अमीर आदमी, And the best example is the rich man from Bible. वो सेल्फिश था, He was selfish उसे यीशु के पीछे चलना था, and he want to follow Jesus, लेकिन किसके साथ? प्रॉपर्टी के साथ।
But he want to follow Jesus with his property, with his money. यीशु ने कहा कि तू सब छोड़कर मेरे पीछे आ। But what Jesus said to him, you left all these things behind and you only ये follow सब me. गरीबों को दे दे। You should distribute your money, property amongst the needy. लेकिन वो देना नहीं चाहता। But he don't want to give to needy people because he was selfish. वो कहता था ये पैसा मेरा है। What he was thinking, all this property is mine only. इसलिए जब भी आप बोलते हैं ना ये मेरा घर है, Whenever you are saying this is my house, this is my property, तब आप समझ जाना स्वार्थी। so we are selfish at that तू time. मेरा खाती है। So when we are saying that तू मेरा खाता है। you are getting food just because of me. ये स्वार्थी, जब इंसान के अंदर स्वार्थ जागरूक होता है, क्योंकि हमें खाना कौन खिलाता है? परमेश्वर। Because God feeds all His people. घर में आप सबको रहने के लिए प्रभु ने घर दिया है। And God gives us house to stay in that house. भले आपके नाम पर घर है, Now that property is on your name, लेकिन वो घर सबका है। but that home belongs to Jesus. अभी प्रेम भाई का घर है, Suppose we have Mr. Prem, and लेकिन वो घर उनका है, उनके नाम पर ही डॉक्यूमेंट सब उनके नाम पर। his own house is registered on his name. लेकिन वो घर प्रमिला सिस्टर का भी है, प्रथम का भी है, प्रणाम का भी है। But his home belongs to his wife and his 2 kids also. जब हमारे अंदर स्वार्थी इच्छा आ जाती है, तब हम डिवीजन करने लगते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने कमाया है, मटन 4 पीस मैं लूंगा, तुम एक ले लो। And when we become selfish, when we become egoistic, at that time we are starting doing division because this is my house. I'm the owner of this house, so I'll take larger portion. You will get the smaller portion. है ना, इसीलिए ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहुना की जो माँ थी ना, यहुना याकूब की माँ, उसके अंदर भी लालच आ गया था। उसकी इच्छा क्या थी? मेरा एक बेटा यीशु के, दूसरा, हाँ, ये बड़ी लालच उसके अंदर, बड़ी इच्छा आ गई थी, वो स्वार्थी थी। So the mother of Jacob and John, she was also a greedy woman. So that's why she desires that वो my स्वार्थी बन चुकी थी और उसने वो स्वार्थी इच्छा अपने दोनों बच्चों के अंदर डाल दी थी। and she was a selfish woman, and that desire she put in her 2 kids, और वो बच्चे भी तैयार हो गए। and they both her kids were also ready for it. यीशु ने कितने शिष्यों को चुना था? How many disciples Jesus chosen? 12 disciples. उसने बोला था, पीटर तुम आज मेरे राइट हैंड में रहना, जॉन तुम मेरे लेफ्ट हैंड में सदा रहना, ऐसा बोला था क्या? Is it said to Peter and John, you should surrounded me left and right? 12 प्रेरित समान थे, All the 12 disciples are same, सेम थे, and they were at same position. सिर्फ इस्तेमाल पीटर का पहला पत्थर बोल के चुना गया। But Peter was the first rock on whom the church was built, and he was used more for God's glory. क्योंकि वो उन सब में उम्र में बड़ा था, Because he was elder amongst all those disciples, स्ट्रॉन्ग था, and he was strong. इसीलिए उसे चुना गया। That's why Peter were chosen by Jesus, और उसने उन सबको जमा किया। and he only gathered all the people. ये कुवत उसमें थी। He have that capability. अब एक छोटा सा लड़का यहूना उनको बोलता, आओ हम सब प्रार्थना को बैठेंगे। At that time, John was very kid. He was young, and at that point, suppose John was commanding people, or when he was instructing people that okay, we'll start praying. So whether people will listen in, no. अभी सोचो प्रणव हमारे बीच में खड़ा हो गया है We have Pranam among us, और वो बोलेगा आओ हम प्रार्थना करेंगे। and he will come here and he will ask people, okay, we'll start praying. हाँ वैसे देखो, What people will listen in? सुनेंगे? No. Why? Because he's small. इसीलिए वो बड़ा था, उसके पास अथॉरिटी प्रभु So दिया। that's why Jesus gave authority to Peter. Why? Because he was senior, he was superior among all the और disciples. यीशु ने उन्हें ये भी कहा कि मेरे दाहिनी ओर, मेरे बाई ओर किसको रखना, ये मेरा काम नहीं है। And what Jesus said, to keep someone at my left side and right side, this is not my work. है ना? मैथ्यू में 20 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 21 में। You can read in the book of Matthew chapter 20 verse 22. उसमें आप पढ़ सकते हैं कि ये पद देने का काम मेरा नहीं है। That authority is not with me, that is God's तो authority. उसके अंदर, उन दोनों के अंदर आई हुई सेल्फिश इच्छा से क्या हुआ था? दूसरे शिष्य क्या हुए? नाराज हुए। And just because of the selfish desire comes into the John and Jacob, because of that, rest of the disciples get sad. They feel sad about it. बराबर है? Correct? नाराज हुए थे ना? They become sad. आपके बाइबल में ऐसा ही लिखा है ना? सही है? क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर सेल्फिश एकदम स्वार्थी इच्छा आ चुकी। Why? Because John and Jacob become selfish.
लेकिन प्रभु ने उनको कहा कि तुम मेरे लिए, मैं जो प्याला पीने वाला हूँ तुम पीने वाले हो क्या? तो बोले हाँ। And what Jesus asked them, like, what I'm going to suffer, are you ready for it? आखिर में जेकब को सफर करना पड़ा ना याकूब को। And then ultimately they said yes, because of that Jacob had to suffer at this इसलिए end. सबसे पहला रक्त साक्षी वही हुआ। And he died for Christ first. He was the first who died for Christ प्रेरितों में from the apostles. पहला रक्त साक्षी स्टीफन हुआ। The first person who died for Christ was Stephen, लेकिन प्रेरितों में but from the apostle Jacob's was the first. सही है? Correct. तलवार से चिरा गया ना, हेरोदेस ने उसको काटा ना। Herodes cut him into two pieces. ये बात आप सीख सकते हो। इसलिए हम जब कुछ बोलते हैं ना, हाँ प्रभु हम ये करेंगे तेरे लिए, ऐसा तो बोलता ठीक है चल तेरी परीक्षा करता हूँ, तेरे लिए तूने जैसा बोला वैसा। लेकिन प्रभु ने उन्हें नम्र होने के लिए सिखाया, अहंकार करने के लिए नहीं, स्वार्थी होने के लिए नहीं। But God teaches them to how to be a humble and how not to be a egoistic. ना तो उसने दूसरों को अपने से ज्यादा अच्छा समझना, ये सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए सिखाया। And God instructed the disciple to love each other and give priority to others than ourselves. स्वार्थी होना ये संसार का मार्ग है, Being the selfish is a sign of world, परंतु प्रभु का मार्ग इसके विरोध है। but God's way is different. उसका मार्ग है दूसरों के लिए, अपने आप को दूसरों के लिए देना। And what is the God's path? God's path is sacrifice ourselves for others. तो स्वार्थीपन जो है ये अदन की वाटिका से शुरुआत हुआ, वो है किससे? आदम और हव्वा से, यानी कहाँ से? शैतान से। So the being the selfish is started from the Garden of Eden, means it is started from our first parents, which is Adam and Eve, through Satan. उन्होंने अपना सोचा फ्रूट अच्छा है, They think about themselves, that fruit is ईश्वर का good, नहीं सोचा। or they not think about the God. तो इसीलिए यीशु मसीह ने भी जिस बाग में, यानी जिस बगीचे में आदम और हव्वा गिरे, प्रियो उसी रीति से उसी बगीचे में भी यीशु की परीक्षा हुई। सिर्फ वो नहीं था, अदन की वाटिका नहीं थी। कौन सा बाग था? जैतून पहाड़। उस बगीचे में यीशु की परीक्षा हुई और यीशु ने कहा मेरी इच्छा नहीं, परंतु किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। और इसीलिए यीशु ने अपने आप को अर्पण कर दिया। In the Old Testament, our first parent, Mr. Adam and Eve, they also tested by the Satan and they fulfill their own desires and they fall into the sin. But the same our Jesus, he was also tested in the Garden of Gethsemane, and at the same time he dedicated himself for ourselves and he died on the cross of तो Calvary. देव निस्वार्थी है। So that is the love which Jesus does on us. This is the unconditional love and selfless love. तो इसलिए एक दूसरे का सम्मान करो। So always do respect of each other. अपने बारे में ज्यादा सोचने से दूसरे के बारे में सोचो। Don't always think about yourself first. Try to think about others. सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचो। First think and respect your parents. दूसरा अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचो। Second, your family means your spouses, your husband, wife, and your kids. 10 आज्ञाओं के बारे में हमने यही देखा है। तो पहले माँ बाप, बाद में बीवी बच्चे। The first is parents, then your family, spouse, and kids. जिन बच्चों में, जिन लोगों में आप रहते हो उनके विषय में सोचो। Then our church people, among which we are staying, our neighbors. इसलिए एक दूसरे से प्रेम करो। So that's why do love each other. किसी का नुकसान नहीं हो ये आपका सोचना है। Don't think about wrong or किसी का नुकसान हो, किसी की हानि हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। don't damage someone else. हमेशा अच्छा करना है। Always do good for others. उसके लिए खुद की सेल्फिश जो स्वार्थी भावना है वो नकारना है, इनकार करना है। So always refuse and deny our selfish desires. तो हम 3 वचनों को पढ़ेंगे। So we'll read 3 words. मत्ती अध्याय 16, Matthew 16, 24-25। verse 24 and 25. कोई भी निकालो, पढ़ो। Anyone can read. मैथ्यू 16, 24-25। Matthew chapter 16, verse 24 and 25. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यानी आप सब से, हम सब क्या है? यीशु के शिष्य। So we all are disciples of Jesus, and now Jesus saying to all of us, अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहते if हो someone want to follow Jesus, तो आपका स्वार्थी हेतु छोड़ दो। Then- किसी का भी विरोध करना, घर में भी अगर घर में सोचेंगे, घर में बोलेंगे आज के दिन हम लोग खिचड़ी खाएंगे, तो विरोध नहीं करना। स्वार्थी नहीं, मुझे आज मटन ही खाना है, रात के 12 बजे अपनी मटन बनाने की इच्छा पूरी मत करो। तो
If someone want to follow Jesus, then we have to refuse ourselves and we have to think about others. फिर और अपना क्रूस उठाया और मेरे पीछे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। And we have to bring our cross and we have to follow Jesus. तो ये प्रभु की इच्छा है, तो आप स्वार्थी मत बनो। So this is God's will and we should not be selfish. दूसरा वचन Second, Proverbs 11:25। Proverbs 11 verse 25. हिंदी वचन अध्याय 11 Proverbs chapter 11 verse 25। verse 25. Proverbs Proverbs chapter 11 chapter 11 verse 25। verse 25. Anyone can read? उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है हाँ, साथ में पढ़ो। हाँ और जो दूसरों की खेती पीसता है उसकी भी सींची जाएगी। हाँ, दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी खेती क्या की जाएगी? आप दूसरों का भला करोगे, आप दूसरों का हित करोगे, तो आपका क्या होगा? So if बुरा you, होगा। आप दूसरों का बुरा करोगे, आप अपने माँ बाप का बुरा करोगे, आप अपने बीवी बच्चों का बुरा करोगे, आप अपने पड़ोसी का बुरा करोगे, तो आपका क्या होगा? अगर आप अपने माँ बाप का अच्छा करोगे तो आपका क्या होगा? आपकी बीवी बच्चे और पति का आप अच्छा करोगे तो क्या होगा? अगर आप चर्च के मेंबर्स के साथ, जिन लोगों के साथ उठते बैठते उनका आप अच्छा करोगे तो आपका क्या होगा? so what God want to teach us is if you do good for others, you definitely in return also you will get good things. But if you स्वार्थी but if you do the evil things, bad thing for others, so in return also you will get the same. So don't be selfish. स्वार्थी मत बनो। So don't be selfish. हाँ, तो स्वार्थी होना इसको नकारो, इनकार करो, मुझे नहीं होना है, मुझे जीना है। आप पुरुष हो, आपको आपके पति पत्नी के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके बच्चों के लिए आपको काम करना है। And as you are a man, God created you as a man, so it's your duty towards your family. So you have to work and you have to fulfill the needs of your family. लेकिन उसके पहले आपको परमेश्वर के लिए काम करना है। But before that, the first priority in all of our life should be Jesus for God. चर्च में आपको आना, You have to attend the church meetings. बाइबल पढ़ना, You have to read the Bible. फास्टिंग करना, You have to do fasting. प्रेयर करना, You have to pray. प्रभु को देना, You have to ये give आपको offerings. करना है, This is our duty. ये आपका काम है। This is our अगर responsibility आप ये toward नहीं God. करते तो आप प्रभु के नजरों में स्वार्थी हो। And if you are not doing all these things, then we become तो selfish. अगर आप प्रभु के साथ करते हो तो आप अपने दिखने वाले इंसान के साथ भी करोगे। And if we are doing these things with our invisible God, who is not seen by these our eyes, so if we are doing with the invisible God, then we can do with the visible people also. सही है? Correct? ऐसा ही वचन कहता है। The word says that. अगर हम कहते हैं प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन देखने वाले इंसान से प्यार नहीं करता, तो क्या वो मनुष्य से प्यार करता है? So if what we are saying that God is invisible, and we are saying God I love you, Jesus I love you, but the people who are we are able to see, to them we are not doing love, and we are not having the loving relationship with them. So is God will happy with us? No. तो देखने वाले इंसान को प्यार करेंगे तो परमेश्वर को भी प्यार कर पाएंगे। So if we are loving the invisible God, similar way we can also love to the visible people. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए दूसरों के साथ अच्छा करो, स्वार्थी मत बनो। So do good with others and never be selfish. दूसरा जेम्स अध्याय 3 उसका 16, याकूब की पत्री अध्याय 3 16, James chapter 3 verse 16. याकूब की पत्री 3:16। James chapter 3 verse 16. क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है जहाँ डाह और विरोध होता है, जहाँ स्वार्थी इच्छा जहाँ आ गई, वहाँ बकेड़ा वहाँ झगड़े हो जाते हैं। जहाँ अभी सोचो अगर बहू को अलग होना है तो कहा कोई बहू वो लोग नाराज मत होना, नहीं तो बोलोगे आते हैं हम लोग को लिखेंगे बहू को लोग पकड़ा। नहीं, मेरी इच्छा नहीं कि कोई भी अलग हो जाएगा। And I never want that the family get departed, family get separate. आप जितने साथ में रहोगे ना उतने लोग डरेंगे, क्योंकि घर में जितने ज्यादा लोग रहते हैं ना उतने अड़ोसी पड़ोसी डरते हैं। And the bigger your family members, your neighbors will be away from you. अलग होना मतलब क्या है? Get departing means what? बाइबल हमें बताता है जो अलग होता है वो क्यों अलग होता है। And what Bible teaches us, the people getting departed from each other means why? Why becomes they are departed? आप जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है वो आगे बताइए अभी इधर बोलेंगे आप लोग, इधर जोर से बोलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा ना। बताओ, बताइए।
वो हम में से नहीं है, They are not from us. सच है। ये भी वचन है, ये वचन कहाँ लिखा है? हाँ? यूहन्ना की पत्री में लिखा है। यूहन्ना की पत्री में लिखा है, जो हमसे अलग हो जाता है वो क्यों हो जाता है? हाँ? क्योंकि वो हमें से नहीं है। In the book of John, the word of God says that the people who want get separate from us, they are not from us. They not belongs from us. इसलिए वो अलग होते हैं। That's why they want to get separated. और Another, 18वां अध्याय, नीति वचनाध्याय 18 और उसका 1 में लिखा है, Proverbs chapter 18 verse 1 says that जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, सब प्रकार की खरी बुद्धि से वैर करता है। thou desire a man having separated himself, seek and intermeddle with all wisdom. Means whoever want to get separated, he want to fulfill his own desire. अपनी इच्छा को पूरा करने, He want to fulfill his own desire. अपना इच्छा अगर लोगों के साथ, अभी सोचो अगर मैं मेरे सास ससुर के साथ रहूंगी तो क्या मेरी इच्छा मैं पूरी कर पाऊंगी? Suppose मैं now I- फैशनेबल बाल बना पाऊंगी क्या? मेरी बाप सास को तो बाल खुला अच्छा नहीं लगता था, तो वो मुझे हमेशा बोलती थी छोटी डाल बाल बांध ले। हाँ सच्ची। और बाल खुला रखे तो बिल्कुल किचन में अलाउड नहीं। वो बोलते थे बाल बांध दो फिर खाना बन किचन में जाओ। तो मेरे बाल लंबे थे तो बाल बना के जाना पड़ता था। अब मूड आता नहीं था ना, इसीलिए छुट्टी डाल के जाना पड़ता था, रबर लगे। अलग हो रहना है तो सुबह मुझे 4 बजे उठना, 5 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि हमको सुबह इतना जल्दी लोग उठते थे, चाय कॉफ़ी बनाना पड़ता था। तो अगर अलग हो जाऊंगी तो क्या है, आराम से होगी, आराम से। कितना बजे? 8 नहीं, 9, 10 आराम से। और कुछ नहीं वाला है, क्योंकि वो मैं किससे डरती थी? सास ससुर से भी। मैं क्या करती थी, जल्दी 9 बजे अभी अच्छा चला जाएगी, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट 12 बजे खाना उनको देना है तो ये जल्दी जल्दी। कोई घर में नहीं है तो फिर क्या बनाने का है? जाने दो, हाँ खिचड़ी खिचड़ी बना लो, नहीं तो कुछ भी वेफर वेफर खा लो, टाइम पास, बच्चों को भी वही खिला दो, है ना। घर में बड़े हैं तो क्या आएगा, फिर बालकनी में ऐसी खड़ी रहूंगी। मेरे ससुर बोले अंदर क्या लेना है, फिश लेना है, मैं मंगवाता हूँ। वो खुद बुलाते थे, रोड पे जाके खुद खड़े रहते थे और बोलते थे, फिश वाला रुकता था, फिर मुझे बाहर बुलाते थे, वो उसको अंदर लेकर आते थे। कौन सा फिश चाहिए, इससे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो लिखता अंदर फिर वो देते है। तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो मेरी इच्छा पूरी करना है तो मुझे मैं ओ जी अच्छा चलना बाहर, मुझे केरला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये केरला बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं, ये केरला बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर इधर आए तो मेरी मर्जी, आराम से कोई भी बच्ची लो, मैं करते जाओ। आपको समझा? रिस्ट्रिक्शंस क्या करते हैं, उस व्यक्ति को सुरक्षित रखते हैं। so restrictions, due to restrictions that person gets safe. जहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं, Wherever there are no restrictions, फ्री हो जाए, so people becomes free फिर वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर। and they start doing by their own will. तो आधीनता बड़ी जरूरत है, So discipline and to be under someone, it's very important. बहुत जरूरी है। It's very important. तो इसीलिए प्रियो, यहाँ जैसे वचन में लिखा है, प्रभु ने यहाँ बताता है कि हमें क्या करना है, आधीन में रहने के लिए। तो इसने आप में कोई भी यहाँ बहू में कोई नाराज विराज करने की हेतु से नहीं बोला है, लेकिन मैं जो कुछ बोल रही हूँ अच्छे के लिए बोल रही हूँ। जुड़ के रहो, मुझे फैमिली, जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है। And the word of God says that be united, always stay together, and God also loves the family who stay united and together.
मिले जुले रहो, फैमिली से जुड़कर रहो, एकदम तुम कहीं कोना में मत जाओ, जुड़कर ही रहो। तो क्या होगा, आपके बुराई के समय पे फैमिली खड़ी रहेगी। Parents are staying somewhere else, the kids are staying somewhere else. The God never likes it. So we are as a one family. We also have to stay together, and at our individual personal family, we should also stay together with our parents, with our family members. एक दूसरे से जुड़े रहो। Always love them, always be with them. तो जो हमने जो वचन पढ़ा, यहाँ फिर से पढ़ो, कौन पढ़ रहा था? क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, हाँ, जहाँ स्वार्थीपन आ जाता है, जहाँ और विरोध मतलब स्वार्थीपन आ जाता है, वहाँ क्या आ जाता है, झगड़े हो जाता है, वहाँ झगड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही ना, स्वार्थीपन पूरा नहीं हो रहा है ना। So whenever there is a selfishness and opposition, their arguments takes place there, and there is no unity, there is no peace. वहाँ वगैरह हर प्रकार का दुश्मन दुष्कर्म, वहाँ बुरे काम होते हैं। इसलिए प्रियो, आज प्रभु आपको और मुझे प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले कहता है, अपनी स्वार्थी नहीं होना है। And before proceeding to the Holy Communion, breaking of bread, God want to teach us that we should never be selfish person. हम दूसरों के हित के लिए अपने आप को देने वाले होने चाहिए। We should always sacrifice ourselves for someone else, ये प्रभु चाहता है। and God wants us. तो क्या अभी हम अपने आप को चेक करेंगे, दूसरों को नहीं। अभी अपनी बीवी को चेक मत करो, आप अपने पति को चेक मत करो, आप अपने बच्चों को चेक मत करो, बच्चे लोग माँ बाप को चेक मत करो, हम अपने आप को चेक। Now what we'll do? Now we'll do a self-evaluation. Now we'll do a self-checking, and we'll evaluate ourselves whether we are into such things, whether we are doing such things, हम सेल्फिश हैं। whether are we selfish. Ask these questions to you. Am I selfish? मेरे भी जो बच्चा रह गया, अरे यार अपन पर आएगा, कबूल करो, आप लागे से नहीं बोल And if we are selfish, though we have to confess it, we have to commit our sins, प्रभु से माफी मांगो and we'll ask for forgiveness from और God, उस सेल्फिश स्पिरिट को निकल जाने के लिए and we'll command that spirit, selfishness spirit, to leave from us. अभी देखो, हम भी सेवा करते समय क्या करते हैं, हम घर में जैसे दो लेडीज है तो सेल्फिश औरत क्या करती है, दूसरे पे ज्यादा काम डाल देती है। Sometimes we have also become selfish at our family. Suppose there are two people, so one will do a small work, one will take a larger portion, तो किसी और पर ज्यादा भार बना देना। and we are giving burden on someone else. अगर सोचो मेरा पति अच्छा है तो पति को से ज्यादा काम करा के लेना। And suppose if your husband is good, your spouse is good, so what the wife will do? He will give all the work to his husband. भाजी भी वही लाई, He will bring all the groceries. भाजी काट के भी वो दे, We will also help her, अभी इतना तक किया तो तड़का भी दे दो, and he will also cook the food for his wife. अभी तड़का दे दिया तो थाली में भी ला के दे दो। Then he will also serve the food. ये बहुत सारी ये सेल्फिशनेस है। And such किसी ने अगर selfish. भाजी लाया तो हम पका के देना हमारा काम है, So we have to distribute work at our family also. सही बात है। Correct? तो मिलजुल कर करो, So always be together and always help each other. अपने से दूसरों को अच्छा समझो। Give priority to someone else than ourselves. आप खड़े हो जाएंगे, Now we'll stand, हम प्रार्थना करेंगे, we'll do a prayer, प्रभु से माफी मांगेंगे। and we'll ask forgiveness from God. Like at most of the times we become selfish in our personal life, so we'll ask for forgiveness. सब लोग खड़े हो जाएंगे Everybody please be stand. और चेक करेंगे बहुत बार कि हम अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसने अपने माँ बाप को दिखाया है। And we will check ourselves most of the times to fulfill our own desire. We disrespect our parents. अपने माँ बाप के निर्णयों को दबाकर अपना निर्णय लागू किया। We never honor their decision, and we took our own decision. हमने अपने माँ बाप से भी बढ़कर पैसों को प्यार किया क्योंकि वो पैसा हमने कमाया। We give importance to the money than our parents because we earn that money. हमारे माँ बाप ने हमारे घर के जितने सदस्य हैं, वो बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को संभालने के लिए अपना सारी पूंजी लगाई, लेकिन अब हम इतने लोग होने के बावजूद भी अपने एक माँ बाप को हम अपनी पूंजी नहीं दे पाए हैं। Our parents sacrifice. हमने बोला ये पैसा मेरा है। Our parents sacrifice their all savings towards us, but now we started earning, and now we are not taking care of our parents. आपने माँ बाप को संभाला नहीं है, माफी मांगो। We never cares for them. We'll ask forgiveness. उनकी दवा पानी के लिए खर्चा नहीं किया, उनके आंसुओं को पोंछा नहीं, उनके साथ रहे नहीं, उनको जो सपोर्ट चाहिए वो दिया नहीं,
आप अपनी डिजायर्स को, अपने इच्छाओं को उनके ऊपर लादा है तो आप प्रभु से मांगे। We never spend money on for their medicines, for their health, for their needs. So we'll ask forgiveness from God. अगर हमने झूठी गवाही दी है If we blame someone, if we give false statement against anyone, तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगो कि प्रभु मैंने दूसरे को तुच्छ जाना, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा जानता हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, इसीलिए मैंने दूसरों को एकदम डाउन किया, नीचे किया। so I devalued someone, God. So that's why we'll ask for the forgiveness. प्रभु मैंने बहुत लोगों की निंदा की। And we'll say that God, I did the false statements about them and I did gossiping. बहुत लोग पीठ पीछे बहुत बोला। And from their backside, I give very wrong statements about them. मैं हमेशा सोचा मैं ही अच्छा, And I always thought that I'm only the good और सब बुरे। and all the people are bad. मुझे माफ कर। So please forgive me. अगर आपने प्रभु को जो देना है, प्रभु का दान दशंश आपने नहीं दिया है, या आपने माँ बाप का हक अपने माँ बाप को नहीं दिया है, बीवी के हाथ में जो धन देना चाहिए नहीं दिया है, उसके लिए प्रभु से मांगो। And in the financial way also, in the financial terms also, if you are not faithful with your God, with church, with your parents, with your family, with your spouses, so please ask for the forgiveness. बहुत बार आपने प्रभु ने जब यह अनाउंस किया गया कि चर्च के लिए मदद की जरूरत है, तो आपने अपना हाथ रोक दिया, मैं क्यों दूं, मैं इस चर्च को नहीं दूंगा, या आपने सेल्फिश बोला नहीं मैं कमाऊँ और इस चर्च को दूं, ऐसे करके, तो इसके लिए भी प्रभु से माफी। And whenever there is an announcement for church that church needs something for building of the church or for construction of the church, but at that time you never help church and you never give the donation, please ask for the forgiveness. उसके लिए प्रभु से, प्रभु मैं उस समय स्वार्थी बना, At that time, God, I became a selfish person. Please forgive me. मुझे माफ कर। Please forgive me. आपको जो जो बातें याद है, अगर आपने कभी बाई चांस घर में भी बोलते समय अगर ऐसा बोल दिया होगा कि मैं कमाता हूँ इसलिए तुम लोग खाते हो, सब मेरा ही खा रहे हो, ऐसा करके ऐसे कभी बाई चांस बोला होगा तो उसके लिए भी प्रभु से माफ। Suppose by chance in your family members also, if you said that I am the only one who, I am the earner of this family, because of me you are getting food, because of me you are getting the shelter. So at that time we become selfish and we devaluated the people. So please ask for the forgiveness. घर मेरा है, मेरे घर से निकल जाओ। This is my house and get out from my house. अगर आपने ऐसा अपने घर के मेंबर्स को बोला है तो माफी मांगो प्रभु से कि प्रभु मैं सचमुच उस समय सेल्फिश हुआ, जबकि घर हम सबका है। If we said something like this, so please ask for the forgiveness, because that house is given by God to all of us. प्रभु से माफी। So please ask for the आपने forgiveness. एक बात के लिए जो आपने सिर्फ अपना स्वार्थ वहाँ बताया दिखाया, आप माफी मांगो। As per the word of God, whatever we saw today, as per this we did, if the single mistake, at the single stage also, if we did the mistake, so please ask for the forgiveness. पवित्र पिता, यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। पिता, मैंने बहुत स्वार्थी स्वभाव जो मेरे पूर्वजों से और मेरे पाप के कारण मुझ में आया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। उससे आपको भी मैंने दुखाया है, मेरे घर के लोगों को भी दुखाया है, क्षमा कर दो। और आज इस स्वार्थी भावना को, इच्छा को और विरोध को, झूठी बड़ाई को, दूसरों को तुच्छ देखने वाली स्वार्थी आत्मा को मेरे अंदर से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। यीशु के नाम से जो मेरे ऊपर वो राज कर रहा था, मैं उसे उतार देता हूँ और उसके सारे अधिकार को यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा नाश करता हूँ। अपने आप को मुक्त करता हूँ, छुटकारा घोषित करता हूँ और मैं डिक्लेयर करता हूँ मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं घोषित करता हूँ, आप अपना नाम लेकर बोलना, वनिता स्वार्थी नहीं है। आप अपना नाम लेकर, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए अपने आप को दे दूँ। मैं अपने से भी ज़्यादा दूसरों को अच्छा समझूंगा। मैं दूसरों का फायदा नहीं उठाऊंगा। अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करूंगा और प्रभु मेरी सेवा करें। धन्यवाद देता हूँ।
धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। आपको बंद करें। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेम पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने थे। प्रभु स्वार्थी करना एक पाप है प्रभु, वो भी गंभीर पाप। आज इस पाप के विषय पर हमने देखा, उसकी उल्लंघना किया है और हम वो नहीं चाहते। बहुत बार हमें मालूम ही नहीं था, अनजाने में बहुत बार हमसे हुआ है। इसलिए मेरे महान पवित्र पिता इस पाप का विरोध करते हैं, उसके लिए क्षमा मांगी है। तू तो क्षमा की खान है, तूने तो क्षमा किया है। यीशु के नाम से प्रभु तूने इन सब के पापों को क्षमा किया है। प्रभु पवित्र पिता इस आत्मा का मैं विरोध करती हूँ, उसे बांधती हूँ, उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करती हूँ। यीशु ने उसे नीचे उतारा है, तो हम भी उसे यीशु के नाम से इन सबके जीवन से, मेरे जीवन से नीचे उतार देते हैं और उसे पैरों के नीचे कुचलती हूँ यीशु के नाम से, और पवित्र आत्मा को रिलीज कर देती हूँ पिता की इच्छा पूरी होने के लिए। और प्रभु कोई भी काम, विरोध, डाह, बलवा करना, बट्टेखोरी, ये सब इनमें कभी मत आए। आज के बाद ये स्वार्थी नहीं है। मैं घोषित करती हूँ, ये जितने यहाँ है ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फिश नहीं है, ये अपनी नहीं दूसरों की हित की चिंता करें और अपने से भी ज्यादा दूसरों को अच्छा समझे। यीशु का लहू लगाकर इन्हें आशीषित करती हूँ और यीशु के लहू से इन्हें कवर करती हूँ। ये वचन प्रभु इन्हें स्मरण रखने के लिए मदद करना। प्रभु अपने माता पिता के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने कलीसिया के पासवान के प्रति, कलीसिया के मेंबर्स के प्रति प्रभु हमेशा फेथफुल रहे। कभी एक दूसरे को धोखा नहीं दे और एक दूसरे की बुराई करे, ना ही प्रभु निंदा करे। आज के बाद ये कभी एक दूसरे की निंदा नहीं करे, कभी भी नहीं। एक दूसरे की पीठ पीछे तो आज के बाद ये कभी नहीं करे। अगर पीठ पीछे बोलेंगे तो तारीफ करेंगे, लेकिन कभी बुराई नहीं। आज के बाद मैं डिक्लेयर करती हूँ, सियोन चर्च का एक एक मेंबर्स, यहाँ जमा हुआ हर एक व्यक्ति आज के बाद कोई गॉसिप नहीं करेगा, कोई निंदा नहीं करेगा, एक दूसरे के पीछे वो किसी की हत्या नहीं करेगा, परंतु आज से वो एक दूसरे की बड़ाई करेगा, अच्छी बात करेगा और भलाई करेगा। आज से ये भलाई करेगी, क्योंकि ऐसे लिखा ना, जो दूसरी की सींची जाती उनकी भी सींची जाएगी। ये दूसरों का भला कर रहे हैं, इनका भी तो भलाई करेगा। मेरा विश्वास है जो ये भलाई करते थे उनका भला करने वाला कोई भलाई इनके दरवाजे से भलेगी नहीं प्रभु, हमेशा भलाई इनके दरवाजे पे रहेगा। धन्यवाद देती हूँ, आपका लहू लगा के यीशु के लहू से कवर करती हूँ और इन्हें फलवंत करती हूँ, आशीषित शबान की सारी आशीष करुणा दया रखना, धनमान सम्मान से दीर्घायु से सदा आनंदित रहने के लिए सहायता यीशु के नाम से। हम लोग